Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 6 poem Lucy from your book English Junction, publication Orient Black Swan. In this, he talks about the beauty of a lady, a woman who lived in a countryside area, outside of the countryside, outside area, and she's remained unnoticed by the rest of the world. Means the area where she lived, that is a remote area, outer side का area जहाँ कोई आता जाता नहीं है. And that lady, that woman is a very beautiful. But in this poem you will read about the feelings. It's all mixture of feelings and emotions of a lady, that she is remained unnoticed by the rest of the world, and at last she died. That is the greatest tragedy here, that the loss and pain, feeling of a loss and pain you're going to read in this poem. This very interesting poem written by the poet William Wordsworth. In this poem you can read about the emotions, feelings, and at last the loss and pain, feelings of a loss and pain. So before moving towards the explanation of this poem, I will give you the detail about the writer, the William Wordsworth. Then I will explain you the poem line by line. Okay, let's read the poem. So, as already I told you, first I will tell you the detail about William Wordsworth, the poet of this poem. So, William Wordsworth born in 1775 and he died in 1850. He was a British poet. He was a nature poet also, we can say, because in most of his poetries we will read about his poetries is revolves around some nature. Means इनके poetries में you can read about a deep love, nature love, and or a deep love. And this poem is one of a group of 5 poems called the Lucy poems. Lucy poems के 5 poems के group हैं. उन 5 poem में से ये एक poems है. It's like a chain of poems, and this one is a one of that poem. Group of 5 poems, the Lucy poem, this one is a one of that poem. So already I told you about the poem. Poem है किसके बारे में? It is about a lady, a beautiful woman who lived alone in a countryside, जो कि country के outer area में रहती है, and she was remained unnoticed by the rest of the world. So let's read about the first line of this poem, what it is given. Let's read. So this is your poem. First line is, she dwell among the untrodden ways, beside the spring of Dove, a maid who there were none to praise and a very few to love. This is the first stanza. Here the first line is she dwell. Dwell means where the people live, जहाँ पे रहा जाता है. She मतलब वो जो वुमेन थी वो रहती थी कहाँ पे? एक अनट्रोडन वेज में. अनट्रोडन वेज मीन्स जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, हम कह सकते हैं रिमोट एरियाज, सुनसान जगह, जैसे कि वहाँ पर एक लेडी जो है, ब्यूटीफुल लेडी जो है, वो रहती थी. बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डोव्स. स्प्रिंग ऑफ डोव मीन्स होता है रिवर, जहाँ से पानी बहता है. वहाँ पे उसके अगल बगल जो है कहीं तो रिवर बह रहा था उसके बगल में, जहाँ उसका घर था रिमोट एरिया में. अ मेड. मेड मीन्स होता है एक यंग अनमैरिड गर्ल. अ यंग अनमैरिड गर्ल whom were a maid whom there were none to praise. None to praise means होता है किसी को एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना. एक अनमैरिड यंग गर्ल एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पे कोई भी नहीं था उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए, उसको एडमायर करने के लिए. एंड वेरी फ्यू टू लव. और वहाँ पे बहुत कम ही लोग थे जो उसे जानते थे, जो जानते थे कि यहाँ पे एक जो है अनमैरिड गर्ल जो है रहती है और उसे प्यार करते थे. बहुत कम ही लोग थे. सो नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा. अ वॉयलेट बाय अ मॉजी स्टोन, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इन इज शाइनिंग इन द स्काई. सो दिस इज द सेकेंड स्टैंजा. इस सेकेंड स्टैंजा में गर्ल की उसकी कितनी सुंदर थी, उसकी ब्यूटी की
बात की गई है वो कितनी सुंदर थी। अवॉइडेड बाई अ मोजिस स्टोन, मोजिस मतलब होता है दलदल, दलदल मतलब कि जहाँ पे लोग खड़े नहीं रह सकते हैं, वहाँ धंस जाते हैं, उस तरह का दलदल है। अवॉइडेड बाई अ मोजी स्टोन मतलब कि उसके एक स्टोन के जैसे कहा गया है, जैसे कि दलदल हो, उसमें एक वॉयलेट कलर का स्टोन साफ चमक रहा हो, हाफ हिडन बाई फ्रॉम द आई, जो कि आंखों तक धसा हुआ हो। वो इतनी सुंदर, जैसे कि दलदल में कोई वॉयलेट कलर का स्टोन ऐसा चमक रहा है, आंखों के जैसे चमक रहा हो और वो अंदर धसता जा रहा हो। फेयर एज ए स्टार when only one is shining in the sky, जब आसमान में सिर्फ एक ही जो स्टार होता है वो बहुत ज़्यादा चमकता है ना, ध्रुव तारा, वो ज़्यादा चमकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आसमान में सिर्फ एक ही तारा जो है जैसे जगमगा रहा हो, वो इतनी सुंदर, इतनी फेयर है, इतनी सुंदर है, मतलब इतनी गोरी है। यहाँ से ये इस स्टैंजा में उसकी खूबसूरती को बताया गया है, कितनी सुंदर है वो, जैसे कि आसमान में कोई एक ही तारा टिमटिमा रहा हो। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। सी लिव्ड अननोन एंड अ फ्यू कुड नो, जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर उसे बहुत कम ही लोग जानते थे और बहुत कुछ ही लोग थे जो जानते कि यहाँ पे ये लेडी रहती है। व्हेन लूसी सीज टू बी मतलब होता है जब वो एक्सपायर कर गई, जब उसकी डेथ हो गई लूसी की। बट सी इज in her grave and oh the difference to me means उसे कुछ ही लोग जानते थे वहाँ पे लूसी को, उस यंग गर्ल को। तो यहाँ तक कि जब उसकी डेथ हो गई और उसको दफनाया भी जा चुका था, वो अपने ग्रेव में थी, वो अपने दफना चुके थे लोग उसको, तब राइटर को पता चलता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, तब उन्हें पता चलता है। एंड ओह द वर्ड यहाँ यूज़ किया, मतलब वो सरप्राइज है ये जान के कि वो शायद उससे मिलने गए होंगे, उन्हें पता वो तो है नहीं, शी वॉज नो मोर, मतलब वो एक्सपायर कर चुकी है, वो मर चुकी है और अब तो उसे दफनाया भी जा चुका है। ये खबर सुन के विलियम वर्ड्सवर्थ जो उससे शायद मिलने गए रहते हैं वो चौंक जाते हैं। ओह डिफरेंस टू मी, मतलब द डिफरेंस टू मी, इस लास्ट लाइन का मतलब ये है कि वो उनके अंदर वो तो ऐसी फीलिंग्स लेके आए थे उससे, उस लड़की से मिलने, कि वो जिंदा होगी। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है वो जो गर्ल थी वो उसकी सिस्टर है, लवर है, उसकी गर्लफ्रेंड है, या फिर क्या है, रिलेशन मेंशन नहीं है, बस यहाँ लव मेंशन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, अच्छी थी, वहाँ उसे कोई जानता नहीं था, वो उससे मिलने गए तो उन्हें सरप्राइज़ लगा कि अरे मतलब वो बहुत पहले ही मर चुकी है और उसे दफनाया भी जा चुका है, अब वो मिलने गए। द डिफरेंस टू मी, मतलब ये डिफरेंस टू मी का लाइन, इस लाइन का यही मीनिंग है कि यहाँ पर वो तो ये सोच के आए थे कि वो जिंदा होगी, बट सब कुछ अलग हो चुका है, डिफरेंस हो चुका है। डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो तो अब जिंदा ही नहीं है, इस वर्ल्ड में ही नहीं है, वो तो मर चुकी, इवन उसे दफनाया भी जा चुका है, वो अपने ग्रेव में होगी, अपने कब्र में है अब वो, तो यही यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। दिस इज द पोएम of this is the Lucy poem. So children, if you understand this poem, then please complete your work and like, subscribe and share this video to your friend. Okay, thank you.